ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ان کی اپنی مرضی سے نہیں اترتا بلکہ اللہ کی اپنی مرضی سے اترتا ہے۔ کچھ لوگ سوچ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ یاد کرواتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کا نام اپنے ذکر والوں کی فہرست میں لکھتا ہے تو اس کے دل پر ایک نشانی نازل ہوتی ہے، ایسی نشانی جسے محسوس کر لیا جائے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ دل کی سمت جدا ہو جاتی ہے اور انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں یاد کر رہا ہوں یا مجھے یاد کروایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں ہم ایک بہت گہرا راز کھولنے جا رہے ہیں۔ اللہ کسی کو اپنا بناتا کیسے ہے؟ یہ سوال بہت سے دلوں میں رہتا ہے مگر بہت کم لوگ اس کی حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں۔ انسان عبادتیں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب قرآن میں کہتا ہے واللہ یجتبی الیہ من یشاء، یعنی اللہ خود چن لیتا ہے جسے چاہے، اپنے لیے، اپنی یاد کے لیے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ پہلے اس کی طرف بڑھ چکا ہوتا ہے، اس پر رحمت کا پہلا پردہ اتر چکا ہوتا ہے، بس بندے کو دیر سے احساس ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے بزرگ کی کہانی بہت مشہور ہے۔ جوانی میں وہ بازاروں میں گھنٹوں بیٹھا رہتا، غفلت، گمراہی، غلط صحبت، ہر دروازے پر گرتا، ہر اندھیرے میں چلتا۔ لوگ کہتے تھے اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا، مگر ایک رات وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا، نہ نیکی کا کوئی ارادہ، نہ عبادت کی کوئی توفیق۔ بس ایک لمحہ ایسا آیا کہ اس کے دل پر عجیب سا بوجھ اترا، جیسے اندر کوئی بھاری دستک ہو۔ اس نے خود کو روتا ہوا پایا، بنا کسی وجہ کے، اور اس نے اپنے آنسوؤں کے بیچ میں صرف ایک جملہ کہا، اے اللہ، میں بہت ٹوٹ گیا ہوں۔ اس رات سے اس کی دنیا بدل گئی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ خود بدل رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے اسے بدلنے کے لیے چن لیا تھا۔ وہ پہلا آنسو، وہ پہلی لرزش، وہ پہلی شرمندگی، یہی وہ نشانی تھی جو اللہ نے اس کے دل پر نازل کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور دین کی سب سے بڑی سمجھ عبادتوں میں نہیں، دلوں کے حال میں ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میرا دل کیوں بے چین ہو جاتا ہے، میں گناہ کے بعد کیوں بھاری ہو جاتا ہوں، اذان کی آواز سن کر دل کیوں پگھلتا ہے، اور کبھی رات کے سناٹے میں دل کیوں کہتا ہے اللہ، یہی تو وہ مقام ہے جہاں دین کی سب سے گہری سمجھ اترتی ہے، اور اس سمجھ کا سب سے اونچا مقام اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل سے دنیا کی بے حسی چھین لیتا ہے، پہلے دل کو نرمی دیتا ہے، پھر ایک دن اچانک دل رو دینے لگتا ہے، دل سوچنے لگتا ہے، گناہوں کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، رحمت کی کھڑکی کھلنے لگتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب بندے کے دل میں اللہ کی طرف کھینچنے والی ایک لکیر بن جاتی ہے۔ وہ لکیر، وہ کشش، وہ اندرونی نرمی، یہی تو وہ پہلا راز ہے کہ اللہ نے بندے کو اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہی بات ہمیں اگلے حصے میں لے جائے گی کہ جب اللہ کسی بندے کو چن لیتا ہے تو اس کے دل پر نازل ہونے والی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے، اور وہ کتنی حیران کن ہوتی ہے۔ جس لمحے اللہ کسی بندے کا نام اپنے ذکر والوں میں لکھتا ہے، اسی لمحے اس کے دل پر پہلی نشانی اترتی ہے، ایک ایسی خاموش پکار جو باہر کی دنیا کو سنائی نہیں دیتی، مگر دل کے اندر ایسا ہلچل مچا دیتی ہے کہ انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عجیب لمحہ ہوتا ہے جس میں سکون بھی ہوتا ہے اور بے چینی بھی، نور بھی ہوتا ہے اور لرزش بھی، جیسے دل کسی بہت دور جگہ سے بلایا جا رہا ہو، اور انسان نے خود تو کچھ نہیں کیا، لیکن دل کے اندر کوئی حرکت خود بخود جنم لینے لگتی ہے۔ پہلی نشانی اکثر بہت خاموش ہوتی ہے مگر بہت طاقتور۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیال ہے، شاید یہ میرا احساس ہے،
मगर हकीकत यह है कि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह दिल पर अपनी रहमत की पहली करन उतारता है। जैसे एक टूटी हुई खिड़की से हल्की सी रोशनी अंदर आ जाए, या जैसे बहुत अंधेरी रात में दूर कहीं एक चिराग जल उठे। दिल सोचता है, ये क्या हो रहा है, मैं क्यों बदल रहा हूं? और यही तो पहला इशारा होता है कि अल्लाह ने उसे याद के रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया है। एक नौजवान की कहानी बहुत इबरतनाक है। वो कई साल हराम कमाई में डूबा रहा, गलत दोस्त, गलत माहौल, गलत रातें। हर दरवाजा उसके लिए खुला था सिवाय हिदायत के। उसके घर वाले परेशान थे कि शायद ये लड़का कभी नहीं बदलेगा। लेकिन एक रात फजर की अजान सुनकर वो घर वापस आ रहा था, नशा उतारे बगैर, दिमाग भारी, दिल खाली। अचानक मस्जिद के स्पीकर से अजान की आवाज उठी, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। वो रुक गया। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसने कभी अजान को इस तरह नहीं सुना था। उस लम्हे उसकी आंखों से आंसू बह निकले, बना किसी इरादे के। न किसी ने समझाया, न कोई बयान सुना, न कोई तबलीग, मगर दिल खुद टूट गया। वो बैठ गया, सर पकड़कर रोने लगा और सिर्फ एक जुमला कह सका, या अल्लाह, मैं बहुत दूर चला गया था। यही थी पहली निशानी। अल्लाह ने उसका नाम अपने जिक्र वालों में लिख दिया था, इसलिए उसके दिल पर पहली बार शर्मिंदगी का नूर उतरा। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। और ये आयत सिर्फ इबादत करने वाले दिल पर लागू नहीं होती, बल्कि उस दिल पर भी उतरती है जो अभी वापस पलटने वाला हो, जिसे अभी पहला इशारा मिला हो, जिस पर पहली पाकीज़ा हलचल उतरी हो। इंसान समझता है कि ये बेचैनी क्यों है, ये सुकून क्यों है, ये ऐसी कैफियत क्यों है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। यही है वो मकाम जहां दिल को पहली बार अपने रब की तरफ पलटने की ख्वाहिश होती है। और ये ख्वाहिश बंदे की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से होती है। औलिया ने फरमाया है, जिक्र की पहली निशानी ये नहीं कि तुम्हें इबादत का शौक हो, बल्कि ये कि तुम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना शुरू हो जाओ। ये शर्मिंदगी, ये अंदर की कसक, ये खामोश पुकार, यही जिक्र कल्बी का पहला दरवाजा है। बंदा सजदा में नहीं गिरता, मगर दिल झुकने लगता है। जबान पर तौबा नहीं आती, मगर रूह पुकार उठती है, वापस आ जाओ। यही वो मकाम है जहां इंसान समझता है कि मैंने जिक्र शुरू नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने मेरे अंदर जिक्र शुरू करवाया है। और यहां एक बहुत बड़ा अमली सबक छुपा है। जिक्र की सबसे पहली शक्ल लिसानी नहीं होती, दिल की नीयत होती है। यानी दिल में ये इरादा उठ जाए कि मैं अल्लाह को याद करना चाहता हूं। यही पहला जिक्र है। इससे पहले कुछ भी नहीं, न तस्बीह, न वज़ाइफ, न विर्द। सबसे पहला जिक्र सिर्फ नीयत है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे दिलों को देखता हूं, तुम्हारे अल्फाज को नहीं। जब दिल में अल्लाह का इरादा जागता है, तो यह अल्लाह की जानिब से पहला तोहफा होता है कि उसने दिल को अपनी तरफ मोड़ दिया। लेकिन जब बंदा इस पहली निशानी को कबूल कर लेता है, अपने दिल की उस खामोश पुकार को दबाकर नहीं भागता, बल्कि एक लम्हे के लिए रुक कर कहता है, या अल्लाह, मैं हाजिर हूं, तो फिर दिल के अंदर एक और तब्दीली जन्म लेती है। एक ऐसी तब्दीली जो इंसान की पूरी दुनिया बदल देती है। दिल का जिंदा होना, ये एक अजीब सा राज है। जिक्र कल्बी का सारा सफर इसी एक लम्हे पर खड़ा होता है, जब दिल पहला सांस लेता है। हाँ, दिल भी सांस लेता है। कुछ दिल ऐसे होते हैं जो धड़कते तो हैं, लेकिन जिंदा नहीं होते। इंसान चलता फिरता है, जीता है, खाता पीता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर लोग मुर्दा दिल लेकर फिरते हैं, जिस्म जिंदा मगर दिल मुर्दा। यही वो मकाम है जहां जिक्र कल्बी का असल राज छुपा है, क्योंकि जिक्र वो है जो मुर्दा दिल को उठाकर जिंदा करता है, और जिंदा दिल वो है जो हर वक्त अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता ढूंढता रहे। औलिया फरमाते हैं कि जिंदा दिल वो नहीं जो घंटों इबादत करे, बल्कि वो है जो एक लम्हे के गुनाह के बाद भी बेचैन हो जाए।
जो दुनिया में रहकर दुनिया से ऊपर उठने की कोशिश करे, जो लोगों के बीच रहकर भी अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता तलाश करता रहे। जिंदा दिल वो है जो सजदे में नहीं बल्कि हर सांस में अल्लाह को महसूस करने लगता है। वो जान लेता है कि जिंदगी सिर्फ वो नहीं जो आंखें देखती हैं, बल्कि वो भी है जो दिल महसूस करता है। और यही मकाम है जहां इंसान पहली बार समझता है कि दिल जिंदा हो रहा है। एक फकीरी कहानी है। एक फकीर था जिसकी जिंदगी बहुत सख्तियों में गुजरी। कोई उसे मानता नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, कोई सहारा नहीं था। वो दिन भर बाजार में फिरता, कभी यहां बैठ जाता, कभी वहां, मगर उसके अंदर एक अजीब सी प्यास थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक रात वो दरिया किनारे बैठा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी, ठंडी हवा और खामोश पानी। वो अपने दिल की बेचैनी पर हैरान था। अचानक एक लम्हा आया। दिल में एक चिंगारी सी जल उठी, एक ऐसी गर्मी जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उठ रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल कुछ कहना चाहता है, कुछ पुकारता है, जैसे दिल के अंदर कोई दरवाजा खुल गया हो। वो रो पड़ा और उसने सिर्फ यही कहा, अल्लाह, अगर तू है तो मुझे महसूस करा दे। और इसी लम्हे उसका दिल बेदार हो गया। न कोई करामत, न कोई बड़ा वाकया, बस एक लम्हे की सच्चाई, एक लम्हे की सादगी और अल्लाह की रहमत की पहली हवा। उस दिन के बाद उस फकीर की दुनिया बदल गई। लोग कहते थे उसके अंदर कोई नूर आ गया है, मगर हकीकत यह थी कि उसका दिल जिंदा हो गया था, बस। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फ़इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल कुलूब। अंधी आंखें नहीं होती, अंधे दिल होते हैं। इंसान समझता है कि वो देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, लेकिन जब तक दिल जिंदा ना हो, जिंदगी की हकीकत समझ में नहीं आती। और जब दिल जिंदा होता है तो वो चीजें देखने लगता है जो आम आंख नहीं देख सकती। वो अल्लाह के इशारे महसूस करता है, हालात की जबान समझ लेता है और छोटी छोटी बातों में अल्लाह की मोहब्बत ढूंढने लगता है। यहां एक बहुत आसान मगर बहुत ताकतवर अमली तरीका है जो औलिया ने हमेशा दिया है। रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट खामोश बैठ जाओ। न तस्बीह, न लफ्ज, न जबान, सिर्फ दिल पर ध्यान। ये खामोश जिक्र है जिसे इस्लाम में मुराकबा इलाहदारी कहते हैं। बस आंखें बंद करके अपने दिल की तरफ देखो, दिल को सुनो, सांस आहिस्ता लो और हर सांस के साथ दिल में सिर्फ इतना कहो, अल्लाह। आवाज नहीं, सिर्फ एहसास। सांस अंदर जाए तो दिल कहे अल्लाह, सांस बाहर आए दिल कहे अल्लाह। यही वो जिक्र है जो दिल को जिंदा करता है। यही वो लम्हा है जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत का पहला चिराग जलता है। यही वो अमल है जो दिल को धीरे धीरे जागने पर मजबूर कर देता है। जब इंसान रोज के ये 2 मिनट दिल को देता है तो ये 2 मिनट एक दिन दिल की जिंदगी बन जाते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब दिल खुद ब खुद अल्लाह को तलाश करने लगता है। दिल की धड़कन में अल्लाह का नाम शामिल होने लगता है। इंसान कुछ नहीं करता मगर उसके दिल में रोशनी आने लगती है। और जब दिल जिंदा हो जाता है तो अल्लाह उस जिंदा दिल को एक और निशानी देता है, एक ऐसी निशानी जो इंसान को इस रास्ते पर बहुत आगे ले जाती है। जब दिल अल्लाह को याद करने लगता है अपने आप, बगैर कोशिश के, तो समझ लो कि ये वो मकाम है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। ये दर्जा अल्लाह अपने खास बंदों को देता है। कुछ लोग जिक्र करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह जिक्र करवाता है। ये वो मकाम नहीं जो मश्क से मिले, ये वो मकाम है जो कबूलियत से मिलता है। जब अल्लाह किसी बंदे के दिल में अपने नाम की खुशबू डाल दे तो फिर उस बंदे का दिल खुद ब खुद अल्लाह अल्लाह कहने लगता है। वो चलते हुए, उठते बैठते, काम करते हुए, बिल्कुल बेख्याली में भी अपने अंदर कोई नूरानी हरकत महसूस करता है, जैसे दिल के अंदर कोई मुसलसल दस्तक हो, कोई बेदारी हो, कोई खामोश जबान चल रही हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी जबान तर होती है उसका दिल भी तर होता है।
मगर यहाँ एक राज छुपा है। जबान का तर होना काफी नहीं, असल तर दिल का होना है। और दिल तभी तर होता है जब उसके अंदर अल्लाह का नाम खुद उतर जाए। जिक्र कल्बी का सबसे ऊंचा मकाम यह है कि जिक्र जबान से नहीं चलता, दर्द से चलता है। जबान के जिक्र को कोशिश चाहिए होती है, मगर दिल के जिक्र को बस एक ही चीज चाहिए, अंदर का टूटा हुआपन। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो उसकी रूह अल्लाह के नाम की तरफ भागने लगती है। और फिर जिक्र इंसान से नहीं बल्कि इंसान के दिल से खुद निकलता है। एक वारिस शातर्स की दास्तान है। एक दरवेश था, जवानी से ही दुनिया से टूटा हुआ। लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं बनेगा, ये बर्बाद हो गया है। वो रातों को दरिया किनारे बैठता, सर झुकाए, खामोश, हैरान। न नमाज की पाबंदी, न विर्द, न वज़ाइफ, कुछ नहीं। मगर उसके अंदर एक खामोश दर्द था, एक सच्ची तलब थी। एक रात वो दरिया के पास बैठा था। गहरी खामोशी, ठंडी हवा, आसमान पर बिखरे हुए सितारे। अचानक ऐसा लगा जैसे उसके दिल के अंदर कोई रोशनी गिर पड़ी हो। उसने सांस ली तो दिल में अल्लाह की आवाज महसूस हुई। उसने सांस छोड़ा तो फिर अल्लाह। उसने हैरत से कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठ खड़ा हुआ, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये तो तू है। और इसी रात उसके दिल पर नुज़ूल जिक्र हुआ। न किसी उस्ताद के पास गया, न किसी मुर्शिद ने सिखाया। ये वो जिक्र था जो रब ने खुद सिखाया। कहते हैं उस रात के बाद वो जवान कभी तन्हा न रहा। उसके दिल की धड़कनों में अल्लाह का नाम शामिल हो गया था। अमली तरीका भी बहुत आसान है। दिल को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए 3 शर्तें पूरी करना पड़ती हैं। पहली ये कि रिस्क हलाल हो, क्योंकि हराम नवाला दिल को स्याह कर देता है, ख्वाहिशों को भड़का देता है और जिक्र के नूर को खामोश कर देता है। दूसरी शर्त ये कि बंदा गुनाहों से जितना बच सकता है बचने की कोशिश करे, हत्ता कि अगर गुनाह हो भी जाए तो फौरन शर्मिंदा हो जाए। यही शर्मिंदगी जिक्र का ईंधन है। और तीसरी शर्त, रात को सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट, बस 1 मिनट अल्लाह को याद करो। सिर्फ इतना कहो, या अल्लाह, मैं तेरा हूं। आवाज नहीं, सिर्फ दिल की पुकार। इस 1 मिनट की याद में वो ताकत है जो दिल को जिक्र के काबिल बना देती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब अल्लाह किसी को जिक्र करना सिखा देता है, जब दिल में अल्लाह का नाम खुद ब खुद उठने लगता है, तो शैतान उस इंसान से डरने लगता है। हाँ, डरने लगता है, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का नाम खुद चल रहा हो, उस दिल तक शैतान का रास्ता बंद हो जाता है। शैतान सिर्फ उन दिलों में फिरता है जो खाली हों, जो तारीक हों, जो बेदार ना हो। मगर जिस दिल में अल्लाह का जिक्र सूरज की तरह चमक रहा हो, उस दिल की तरफ शैतान नजर भी नहीं उठाता। और जब दिल इस दर्जे तक पहुंच जाता है, जब जिक्र खुद ब खुद चलने लगता है, बगैर कोशिश, बगैर मेहनत के, तो फिर एक और बहुत बड़ी और हैरत अंगेज मंजिल आती है। वो मंजिल जिसमें इंसान का दिल कभी सोता ही नहीं, हमेशा जागता रहता है। जब दिल इस मकाम तक पहुंच जाता है कि उसका जिक्र कभी बंद नहीं होता, तो समझ लो ये वो मर्तबा है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ये अवेक हार्ट का मकाम है। वो दिल जो कभी सोता नहीं। जिस्म थक जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, इंसान बेहोश हो जाता है, मगर दिल नहीं सोता। और जब दिल में अल्लाह का जिक्र खुद चलने लगे, तो फिर नींद में भी दिल जागता रहता है। यही तो औलिया कहते हैं, बंदा सोता है, दिल नहीं सोता।